Assalamu alaikum, I'm Fayal Khan, and today is our theme art as a cervical uh, spine in society. So, today we will talk about art, that how art can play an important role in the evolution of our society. We have a guest, Adam Shah and Wakar. So, let's have a brief introduction of them. First of all, Wakar. Ji, thank you so much, Faral, for inviting me to such an innovative platform. और बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये टॉपिक जैसे ही आपने मेरे से शेयर किया that definitely art is the cervical spine of the society. And I'm a singer, and I do as a genre I do hip hop and rap music, and I'm doing it like since 2015. So I have done a few music videos also. They are all on air, and I'm getting good response. और कुछ कल्चरल जो साइड्स हैं उनको भी म्यूजिक में टच कर रहा हूँ, और कुछ जो क्रिटिक्स हैं उनको भी म्यूजिक में सामने ला रहा हूँ. सो दिस इज हाउ इज ऑल गोइंग फ्रॉम माय साइड. Okay. Next, we have Adam Shah. Um, Assalamu alaikum. Thank you, Fayal, for inviting me here and give me a chance to talk about my experience and all. And I like the topic as well. And well, basically, I own a production house named Funkaria. And by professional, I'm a writer, director, producer, and actor as well. So, well, I think personally that yes, art is like the major part of every society. What in if we talk about like as you see that every culture and every society have their own specific art or the art activities as well. Even if we talk about this dance, right? So we have like different cultural dance, like Dances, even yeah. of Pakistan in our own culture, right? In our own industry, we can see a lot of like various kind of the dance or this it's singing the varieties. So yes, this is actually a very major part of it. Yeah. Okay. So as my viewers know that I'm doing podcasts on national level as well as international level or with inclusive themes. So here we all are here to, like to collaborate with each other. So during this pandemic, Homo sapiens learned that collaboration is very much important. An inclusive level of collaboration is very, very much important and is a dire need of this time. So I have made initiative of it, and this is like my, I think, my new theme, which A I good was step. it was my the great initiative, and and this theme is very much important to me, and it is very close to my heart. Actually, I wanted to say it. So first of all, I will ask a question from Makar, who is a musician and who bring the formation the evolutionary change in the society through music. That is a very inclusive thing which I just admire, and I just love to listen from him that how he is creating music for the formation of the society, जहाँ पे society में हमारे यहाँ इतनी contradictions और इतनी controversial चीज़ है म्यूजिक हमारे यहाँ ड्यू टू सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री के यहाँ पे सूफीज़्म की वजह से इस्लाम फैला है और सूफीज़्म की कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं यहाँ पर. तो म्यूजिक के थ्रू यहाँ पर जो है वो कैसे वकार सोसाइटी में रिफॉर्मेशन ला रहे हैं और कैसे इस सोसाइटी में एवोल्यूशन का रोल प्ले करेगा इनका म्यूजिक. तो ये वकार से हम बात करते हैं कि वकार हाउ ही इज क्रिएटिंग दिस एजेंडा. थैंक यू सो मच फरयाल फॉर दिस क्वेश्चन. और ये अभी तक आज तक जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं ये क्वेश्चन कभी कहीं से नहीं आया, और मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगा है क्योंकि मेरा एक्चुअली 2015 में जो पहला म्यूजिक ट्रैक था विद और वेरी फेमस म्यूजिक डायरेक्टर सार अली बगा साहब, उस गाने का नाम ही था जागो पाकिस्तान. दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैट्रियटिज्म, उसमें एक हुब्बुल वतनी का जज्बा था, और साथ दूसरा यही वाला मैसेज था जिस पे आप बात कर रही हो कि हम अपनी सोसाइटी को, अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, रेवोल्यूशन कैसे ला सकते हैं या मुद्दा. एवोल्यूशन तो या एक्चुअली जितने भी फ़नूने लतीफ़ा हैं, आदम शाह साहब भी हैं, वो भी इस बात को सेकंड करेंगे कि जितने भी फ़नूने लतीफ़ा अवेलेबल हैं, वो सब के सब जायज़ हैं. और इसके बारे में अगर कोई भी मतलब किसी का मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में या वर्ल्ड वाइड किसी भी जगह पे, तो वो मेरा ख्याल जावेद गामिदी साहब का बहुत ही फेमस लेक्चर है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है.
Yeah. रिगार्डिंग म्यूजिक आर्ट्स एंड ऑल दिस, जिसमें उन्होंने बताया कुरान पाक का एविडेंस देख के कौन सी 5 चीजें अल्लाह ने हराम करार दी हैं और उसमें म्यूजिक नहीं है। एक्चुअली देखें, द यूज ऑफ एनीथिंग कैन बी वर्स ना। बहुत से लोग जो हैं वो होली वर्सेस को नाउजुबिल्ला ब्लैक मैजिक के लिए भी यूज करते हैं। Yeah. हाँ, दे आर यूजिंग द होली बुक फॉर अ बैड पर्पस। इन द सेम वे बहुत से लोग होली बुक को अच्छे पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसी तरह जितने भी आर्ट्स, पेंटिंग, म्यूजिक और जितने भी फ़नून लतीफ़ हैं, अगर इनको पॉजिटिव यूज़ किया जाए सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, सोसाइटी को उसकी खामियां बड़े ही लाइटर नोट पे बताने के लिए कि ये बेहतर करने की ज़रूरत है, तो इससे होता है बिल्कुल पॉजिटिव चेंज आता है। लोग उसको देखते हैं। अभी जैसे कोरोना का पेंडेमिक गुजरा है, तो ऑल्दो इट वाज अ वेरी सीरियस टॉपिक, लेकिन मैंने भी और मेरे साथ कुछ और बहुत से जो आर्टिस्ट हैं, कोई पेंटर है, कोई सिंगर है, कोई राइटर है, कोई शायर है, कोई 3D एनिमेटर है, कोई कार्टून एनिमेटर है, उन्होंने लाइट लाइट नोट पे कुछ फनी या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के जरिए सोसाइटी में एक अवेयरनेस देनी शुरू की, ताकि Nice. लोगों के ऊपर से वो बर्डन भी थोड़ा ओवरड्यू जो था वो खत्म हो, और वो बर्डन लाइट करने के साथ साथ लोगों को थोड़ी एंटरटेनमेंट मिले और इन्फॉर्मेशन। तो Yeah. म्यूजिक को एज एन इंफोटेनमेंट के तौर पे म्यूजिक को बिल्कुल यूज किया जा सकता है। इससे पॉजिटिव चेंजेस आती रही हैं। 1965 के अंदर मैम ने भी गाना गाया था, मैडम नूरजहां ने, और उसका इम्पैक्ट आपके सामने था, सब लोगों ने माना उसे। तो पॉजिटिव चेंजेस आती हैं और ये हमेशा से चलता आएगा। जब भी आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज करते हैं जो कि कुछ लोगों को नहीं समझ आती, तो वो ये कहना शुरू कर देते हैं, यार ये हराम है तो ये हलाल है। सो दिस इज अ बैटल विच विल नेवर एंड टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा, ये पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है ये बात। ठीक है, हर सोसाइटी में हर किसी का अपना होता है। ये बात सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है, ये बात हमारी पढ़ी लिखी आवाम भी इस चीज़ को जो है, मिडिवल एज की जो मिसकंसेप्शन है ना, जो मिडिवल एज की जो मिसकंसेप्शन है उसमें लोग रहते हैं। एक लाइक उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू क्लियर द नैरेटिव थ्रू माय प्लेटफॉर्म कि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ें क्लियर हों ताकि लोग जो है एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से हम लोग गुजर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग उसको मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो जब तक उस चीज़ की अवेयरनेस इनग्रेन इनकलकेट नहीं होती सही तरह से, तो वो फॉर्मेशन नहीं बनती, वो ह्यूमन बीइंग उस तरह से एवॉल्व नहीं करता। तो जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, तो इस पे जो है आपका जो म्यूजिक है, उसमें क्या क्या एज अ क्रिएटिव और एज जैसे कि आपने कहा एंटरटेनमेंट ब्लेंड विद अवेयरनेस, तो क्या क्या थीम्स हैं आपकी फर्दर, और प्रीवियस वर्क भी थोड़ा सा आप हमसे शेयर करें ताकि। जी, वंस अगेन थैंक यू फ़याल। मैं बिल्कुल प्रीवियस वर्क आपसे शेयर कर देता हूँ, जिसमें प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ कि मैंने एक पैट्रियोटिक ट्रैक जागो पाकिस्तान किया, वो भी इसी रेवोल्यूशन पे था। फिर इलामा इकबाल का एक कलाम है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अब इश्क इम्तहां और भी हैं। तो इसको ये भी ऑब्वियसली इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी मैसेज है हमारी यूथ के लिए। तो एवरीबडी लव्स म्यूजिक ना, हम डेली जिंगल्स सुन रहे होते हैं और जिंगल्स अच्छे लगते हैं हमें। तो इसका एक बड़ा अच्छा म्यूजिक ट्रैक किया हमने, वो लोगों को अच्छा लगा। फिर मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक ट्रैक किया था, लेट्स फ्लाई, कि आओ उड़ें, वो भी हाँ। इलामा इकबाल की सारी पोइट्री पे था। वो उसका भी वैसा ही रिस्पॉन्स आया। और स्पेशली मेरा गाना जागो पाकिस्तान जो है वो ISPR ने शेयर किया, अपने पेजेस पे अपलोड भी किया, प्रमोट भी किया। ये एक पॉजिटिव चेंज था। उसके बाद अभी रिसेंटली जो मैं समझता हूँ कि जो मैंने ये आपके वाली बात कि जो रिलीजन के साथ हम बिला वजह टैग करते हैं, सूफीज़्म के साथ टैग करते हैं, तो मैंने उसको उसको थोड़ा-सा, ये जो बीच में एक बैरियर है ना, जो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसको कम करने के लिए मैंने एक सूफ़ी ट्रैक किया है, जिसका नाम था अली अली बोलो। हाँ, And I my listened to it concept and it was was this कि amazing. actually, yeah, thank you so much Priyal. And what I really wanted to say, wanted to present in that track was कि यार देखो, हमारे अभी जो बच्चे हैं ना, वो आजकल बड़े हो के बाहुबली को, स्पाइडरमैन को, हाँ। सुपरमैन को, छोटा भीम को, इनको अपने हीरोज समझते हैं। अच्छा, और वो इनको हीरोज इसलिए समझते हैं कि वो इनके जिंगल्स, इनके सॉन्ग्स, इनके एनिमेटेड वीडियोस, ये चीज़ें डेली देख रहे होते हैं। तो इन द सेम वे, अगर हम म्यूजिक के जरिए, आर्ट के जरिए, जिसको लोग पसंद करते हैं, उसमें अपने सुपर हीरोज को सामने लाएं जो कि रियली हैं भी, ठीक है। तो हमने फिर वो सूफी ट्रैक किया, ताहिर अब्बास के साथ कोलैबोरेट किया मैंने, और जिसका नाम था अली अली बोलो, और वो उसका रिस्पांस अच्छा गया है। Yeah. और अभी भी पेज पे आई वाज जस्ट लुकिंग ओवर के इट इज जेन्युइनली ग्रोइंग, पीपल आर जेन्युइनली शेयरिंग, इट हैज क्रॉस्ड लाइक 160,000 प्लस व्यूज, and they are all organic, they are all genuine.
तो लोग अब जब कोई चीज देते हो, हाँ, लोग डिबेट उस पर जरूर करते हैं, डिबेट करते हुए आपस में अपने कॉन्सेप्ट लोग खुद ही क्लियर कर लेंगे। तो यही एक ब्यूटी भी है डेमोक्रेसी की। तो वो ये जरूर है कि वो चीज देने से जो है लोगों को ये फीलर आया कि हाँ यार ये चीजें करनी चाहिए, हम क्यों नहीं कर रहे, अपने सुपर हीरोज को ऐसे खराजे कीमत हम क्यों नहीं पेश कर रहे। जबकि कोई दूसरे जो कल्चर्स हैं, हिंदुइज्म या कोई भी कल्चर है इंडिया में, वो अपने हीरोज को अपने आर्ट्स के जरिए काफी ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसीलिए उनके उनके रिलीजन के हीरोज निकल के हमारे यहाँ पे घुसे हुए हैं। सो ये अभी तक की अचीवमेंट्स रही हैं। अभी इन फ्यूचर में ये करने जा रहा हूँ कि ये जो हमारे पाकिस्तान में एक जरा थोड़ा गलत सा कल्चर निकल पड़ा है आजकल कि हाँ एक्चुअली जो रैप और हिप हॉप म्यूजिक था, ये इट वाज ये मतलब साउथ अमेरिका की टाइप का अब सारा म्यूजिक है। और ये वो 80s के अंदर स्टार्ट हुआ था और इसको स्टार्ट करने वाले सब नेग्रोज थे। तो जिन लोगों ने ये म्यूजिक स्टार्ट किया वो जिन हालात में रहते थे, वहां पे ड्रग्स होती थी, वॉर था और इस तरह के सारे टॉपिक थे। तो उसको वो चलते चलते कैसा कल्चर डेवलप हो गया कि अब जब ये पाकिस्तान में भी एंटर हुआ है तो हमारे जितने भी आजकल रैपर्स हैं, हिप हॉप करने वाले सभी सिंगर्स हैं, वो अपने गानों के अंदर पैसे का, नशे का और मतलब एक पावर का, इन चीजों का काफी ज्यादा शो ऑफ करते हैं, जिक्र करते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी और यंग जनरेशन के लिए कोई अच्छी और सही चीज नहीं है। बिल्कुल भी ठीक सही है। चीज नहीं है जी। हाँ, तो मैं अभी एक ट्रैक करने जा रहा हूँ और एक नहीं 3-4 ट्रैक हैं और वो सारे सूफी होंगे। अब मेरा मेरा डिसीजन ये है कि मैं एंटरटेनिंग ट्रैक्स करूंगा जिससे लोग खुश हो सकें। सेकेंडली सूफीज्म के ट्रैक करूंगा। मेरे अपकमिंग ट्रैक के अंदर जो है बाबा बुल्ले शाह का कलाम होगा और वो ये बताएगा कि भाई ये जो हम अपने आप को बहुत बड़ी बला समझते हैं, पैसे पे, पावर पे, नशे के ऊपर बड़ा मान रखते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। द रियल थिंग इज पीस, द रियल थिंग इज लविंग ईच अदर। और ये जो इंसान की रूह है ये किसी भी टाइम विद इन अ सेकंड जो है वो उड़ जाएगी। तो इसलिए जब तक यहाँ पे हो तो अच्छे काम करो। तो रैप म्यूजिक के जरिए इंशाल्लाह मेरे नजदीक तो दिस इज दैट विल बी रेवोल्यूशन। हाँ जरूर है, एंटरटेनिंग ट्रैक होता है, उसको मतलब मिलियंस में व्यूज मिल जाते हैं। जो कोई चीज थोड़ा सा ऐसी हो जिसको थोड़ा समझना पड़ता हो, उसको कभी वैसा रिस्पांस नहीं मिल पाता। लेकिन द थिंग इज दिस कि उसको 5 लाख 10 लाख जितने भी लोग व्यू करते हैं वो उनकी लाइफ में एक चेंज जरूर जो है ना वो कोर्स। इनिशिएट करते हैं। हाँ क्योंकि क्योंकि हर दौर में, क्योंकि ये जो बीच में जो 3-4 सेंचुरी से जो इतनी मिसकंसेप्शंस रही हैं, वो यही रही है कि हम्म, सबसे बड़ा जो बैरियर रहा है ना, वो ये रहा है कि हर दौर की अपनी एक लैंग्वेज होती है। जैसे अभी जी। आज के दौर की लैंग्वेज है डिजिटल लैंग्वेज। तो अगर आप उस, जैसे यस। कि अभी आपने बताया कि आप रैप के थ्रू इंक्लूसिव ला रहे हो सूफीज्म के प्रोसेस के थ्रू, तो दैट और इसमें आप थोड़ा सा डिजिटल का टच दोगे, लाइक यू नो, यस। तो इट विल बी अमेजिंग। मतलब इस लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि जो जिस दौर की जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में ही जब हम बात करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड दैट विल बी द वेरी प्रोग्रेसिव थिंग इन द एवोल्यूशन ऑफ एनी सोसाइटी। Yes, थैंक Pral, I do agree. थैंक यू। Any other questions from me for my side? Uh, no, thank you. It was the wonderful thing which you share with us, your previous craft and as well as your future project. So we all are excited for this, and inshallah. And the one suggestion which I would love to give you that अभी जो आपकी जो पिछले जो या अली वाले में जो आपकी तलवार थी ना, I just love that sword. तो उस स्वॉर्ड से ना वो जो खालिद बिन वलीद था, जो खालिद बिन वलीद थी जो तलवार जिसको सैफुल्ला के नाम से, मतलब थोड़ा सा ना मुझे वो भी सिंबलाइज कर रहा था। तो आप खालिद बिन वलीद पर भी कुछ आप करें, मतलब कुछ म्यूजिक है जिससे हम जरूर जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो या मच फॉर गिविंग मी अ फूड फॉर थॉट। और वो तलवार को बिल्कुल अप्रिशिएट करने के लिए जरूरी है, क्योंकि वही वाली बात करूंगा कि वो जो जैसे जैसे बाहुबली का गर्ज था, हाँ जैसे बाहुबली का वो क्या था, वो गर्ज था, थॉर का हैमर है, या और मतलब हर एक ही सुपर हीरो है। इन द सेम वे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु करमुल्ला वजो शेर खुदा जो थे, वो जब भी बैटल में उतरते थे तो ही यूजेज अ सॉर्ड, और उसका नाम था जुल्फिकार। तो या ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गिफ्ट की थी और बोला था। और यही वो तलवार थी जिसको आगे लेके उन्होंने आगे फिर अपनी जनरेशन में इमाम हसन, इमाम हुसैन, इन सबको दी। सो ये ऑब्वियसली हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, तो उसको इसलिए मैंने सिंबलाइज किया ताकि हमें पता चल सके कि भाई हमारे जो हीरोज थे, दिस इज द वे दे वर ना, और दिस इज द वे दे आर। सो बिल्कुल आपने खालिद बिन वलीद वाला मुझे बहुत एक ज़बरदस्त बताया। सैफुल्ला,
अल्लाह की तलवार है वो, तो इंशाल्लाह ये सैफुल्लाह वाली जो लाइन है इसको मैं जरूर यूटिलाइज करूंगा कमिंग प्रोजेक्ट में। Okay, thank you by your side. Thank you, Bakar, for your थैंक यू सो this मच, wonderful थैंक यू। discussion. And now we will move towards Adam Shah, that through his project Funkaria, which is the cultural exchange program. First of all, tell about it, that how it is going on, and how your theater, your creative innovation contribution can lead us in the formation of the society, in the evolution of the society, स्पेशली इन दिस डिजिटल एज जहाँ पे हर बंदा सोशल मीडिया पे बिजी है और उसके पास थिएटर, पहले भी थिएटर के लोग ही समझते थे, तो अब तो इस वाले दौर में तो थिएटर को यू आर द थिएटर पर्सन एंड यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट कि थिएटर को किस तरह से लिया जा रहा है। तो उसका आप थोड़ा सा जरा हमें बताएं कि किस तरह हम लोग आज की जनरेशन को थिएटर की वैल्यू बता सकते हैं और थिएटर कितना सिग्निफिकेंट और ऑर्गेनिक रोल रखता है हमारी सोसाइटी में, और इस डिजिटल एज में हम कैसे इसको मर्ज कर सकते हैं। प्लीज एलाबोरेट इट। Thank you so much for calling me here again. I'm very thankful to you. Actually, the thing is, कोई भी चीज़ है, लाइक अगर आप उसको एक अच्छे नज़र से, एक अच्छे नज़रिए से लोगों के सामने लाकर रखना चाहते हो, तो मेरा ख्याल है कि थिएटर इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि जो एक थिएटर की जो फीलिंग्स होती हैं, जो वो एक खामोशी, लोगों के हुजूम में जो खामोशी होती है, उस खामोशी के बीच में जो थिएटर का शोर होता है, ठीक है, चाहे वो कोई संजीदा टॉपिक है, चाहे वो कोई फनी टॉपिक है, बट वो एक चीज को जो लेके चल रहा होता है ना, वो जो है ना, क्या कहते हैं, मतलब वो उसका एक रूह ही एक अलग होती है, वो एक नजारा ही अलग होता है। सो वन थिंग, सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है, जो हम लोग चीज़ों को जो प्रमोट करते हैं, वो बहुत डिफरेंट है। हम लोग जो है, क्या कहते हैं, दो चीज़ों की बेस पे हर काम करते हैं। एक जो सोसाइटी है और दूसरा कल्चर है। अगर हमारी किसी भी चीज़ में ये दो चीज़ों का एलिमेंट नहीं है, सो वी डोंट डू दैट थिंग। मतलब इट्स नॉट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, राइट। हम दो चीज़ों को हमेशा सामने रखते हैं, सोसाइटी और कल्चर को, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर हम एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक थिएटर को लेकर आ रहे हैं, एक संजीदा या फनी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, और एक बंदा आके अगर उसको for the 60 to 90 seconds if he's watching that thing, ठीक है, so we want them to learn something good out of it, ठीक है, और फिर हम उसको ये देखते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है। हम सिर्फ थिएटर को इस तरीके से नहीं लेकर आते कि एक डेढ़ घंटे का एक थिएटर था, लोग आए, उन्होंने देखा, हंसे और गए और चले गए, ठीक है। हम उसमें से ये देखना चाहते हैं कि जो काम हमने किया उसका सोसाइटी पे इफेक्ट कितना पड़ा है। अभी हम लोग जो एक थिएटर कर रहे हैं, मतलब मैं उसको खुद से लिख रहा हूँ, वो हमारी सोसाइटी की बेस पे है। मतलब वो बेसिकली आई पुट द एलिमेंट व्हिच इज द यूनिटी एंड यूनिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कि हाउ यूनाइट वी आर एंड व्हाट आर द बेसिस थिंग व्हिच आर ब्रेकिंग डाउन अस। तो मतलब ये है कि जब तक हम यूनाइट नहीं होते हैं, हम एक नहीं होते हैं, सो हाउ वी कैन टॉक अबाउट डेवलपमेंट कंट्री, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर ले जाएं, या हम अपने आप को ऊपर ले जाएं, वो सब चीजें बहुत पीछे की हैं, ठीक है, जब तक हम एक नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टैंड लाइक वन एज अ वन नेशन, ठीक है। मैंने एक और म्यूजिकल इवेंट जो है वो प्लान किया हुआ है, जिसको हम लोग इंशाल्लाह 2021 के एंड में करेंगे, और इस इवेंट का नाम ही एक आवाज है। सो आई एम ब्रिंगिंग ऑलमोस्ट 14 कल्चर्स इन इट। वो 14 कल्चर्स जो है वो बेसिकली हर कल्चर का एक आर्टिस्ट है जो कि आके परफॉर्म कर रहा है। 14 कल्चर्स वो 2 से 3 पाकिस्तान दिन से का हैं। इवेंट है, उसमें सेमिनार्स है। एग्जैक्टली, वो एक आवाज है ही पाकिस्तान का ना। अच्छा, अमेजिंग। अच्छा, ठीक है, तो वो सारी जितनी भी आवाजें आ रही हैं वो आके खड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं। वो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के सरजमीन पर है, ठीक है। तो वो जो फ्लैग जो होगा, जो हम उसको उस दिन उसको जब हम लोग वो एक प्रॉपर, दैट इज अ वेरी गुड इवेंट। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू I would टेल love यू, to be the कि part जब of तक it. हम एक नहीं है, आई वुड लव टू सी यू देयर। ओके, सो द थिंग इज, जब तक हम एक नहीं है, ठीक है, वी कैन नॉट टॉक अबाउट लाइक, आई मीन कि पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन।
So the reason I opened that platform, I opened that production house, that is to promote the art through our societal and cultural elements. So वो चीज Great. है. एक चीज, दूसरी चीज हम लोग बहुत सी चीजों को मिक्सअप कर लेते हैं. ठीक है. वकार भाई ने कुछ बातें की थी, आई रियली लाइक देम. ठीक है. उन्होंने एक बात की थी सुपर हीरोज पर. Then he named Thor, जो बाहुबली and other, Yeah. शक्तिमान और उनके जो दूसरे हमारे हमारे हीरोज, हमारे रियल हीरोज और दूसरे कल्चर के रियल हीरोज में बहुत डिफरेंस है. Yeah. हमारे रियल हीरो जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलन. हाँ. राइट. हमारे हीरो जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी हाँ. अल्लाह अन्हु. Of course. We cannot make the animated videos, we cannot make the songs on that. We have a very proper segment on it which we called Sufism. ठीक है. No, हम लोग आबिदा फिल्म्स भी जी तो हैं, बहुत अच्छा हम उस पे काम नहीं, कर रही हैं. हम लोग फिल्म्स भी तो बना सकते हैं ना, देखिए फिल्म्स, फिल्म बनी शॉर्ट थी. फिल्म्स. एक एक देखें, फिल्म बना सकते हैं. एक मूवी आपने देखी होगी द पैसेंजर. जी, of course, जी मैंने देखी है. ठीक है. आपने उसमें देखा होगा कि उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया दिखाया था शुरू में. जब ये मूवी हाँ. बन रही थी तो उसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया आया था. तो उस पे भी कितनी आवाजें उठी थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो साया था ही नहीं. हाँ, ठीक है. मतलब वो एक फिर ह्यूमन बीइंग उसके है, आप बाद उसे उन्होंने दोबारा उसको एज अ रिन्यू ह्यूमन किया बीइंग. और उसके बाद या उनका साया था ही नहीं. ठीक है. सो वी कैन नॉट इवन मेक द मूवीज ऑन दैट. ठीक है. और बट फिर एनिमेटेड या वो तो नहीं. हाँ, हम डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, डिफरेंट हिस्ट्रीज को लेके, इस्लामिक हिस्ट्रीज हो गई हमारी, हम उनको लेके कर सकते हैं. हम नेशनल हिस्ट्रीज हैं हमारी इतनी ज्यादा. हमारे हीरोज जो दूसरे साइड पर आ सकते हैं, दैट इज मोहम्मद कायद आजम अली जिन्ना, इलामा इकबाल, सर सैयद. ठीक है. हम उनको लेके क्यों नहीं चलते? नहीं, वो ठीक भी है. बट ना, हाँ. अगेन देखें, लेट मी जस्ट क्लियर यू दिस पॉइंट. देखें, दो तरह की एनिमेटेड वीडियोस होती हैं और दो तरह के हीरोज होते हैं.